नो प्रॉब्लम, जितना आता है उतना बोलो। डीमेरिट्स बताने में आई विल हेल्प यू। Sorry. Good afternoon. मेरी है। नमन, Ma'am, Naman, मैं if you free. want to check, one second, Vishaka. Naman, if you're having devices in your hand, two devices, you can check into China multinational companies into Africa, which is the biggest demerit. Okay, yes, Vishaka. Good afternoon. Today my topic is in favor of multinational companies. Multinational companies often create more products and receive more revenues, um, um, due to which they can offer better wages and invest in highly skilled workers. And also the multinational companies can enjoy lower taxes in other countries for exports and imports. An advantage that the owner of international corporations can take at any given day. And although not all the countries can have low uh, tariffs, there are those that give tax cuts to investors to attract more international companies. Um, jo- um, Also, when the international companies set up branches in other countries, employees and members of the teams are local. um, one of the advantage of the multinational company is the opportunities to operate in countries where labor is not as expensive. This is the one of the perks that smaller companies can do not join multinational companies. uh, can set up their offices in several countries where demand for their services and products are high, while labor is cheap. Um, by opening establishments or offices in several countries, multinationals increase their chances of reaching out customers on a global scale, a benefit which other companies limited to regional offices and establishments do not have. The access to more customers gives them more opportunities to um, to develop and cater their products and services that will fit the needs of potential customers. Thank you. Thank you, Vishaka. You know what? I had asked everyone to pen down the points. So when you see the points, you can elaborate. Yes, Naman. Naman. Naman, is it going to take little time? Okay. I hope you all are coming to school on Tuesday. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Nice. कंपलसरी है। कंपल्सरी नहीं है, मगर ठीक है। तो वी मैम हैव टू। ऑनलाइन भी होगा साथ में। Ma'am, online will be there. Yes, next year how they did it online as well. Yes, yes, online will be, but it is better you come to school. Sooner or later, we have to join school.
आज नहीं तो कल 11th में तो करना ही पड़ेगा, 12th में करना पड़ेगा. So it is better now only join the school. Yes, Naman, start. They bring foreign direct investment, FDIs. And Naman, in case of even promotions, they prefer giving promotions to high pedestals to their own citizens rather than the professionals of other countries. So they don't let the employees move ahead in the field of the professional field. So they always halt their professional skills. Yes, yes, Tisha. Tisha. Tisha, are you listening? Pranav Ditlani. He left. Pranav, why did you join the class? Pranav, Ma'am, I am there. बोलो ना फिर yes ma'am, no ma'am. Ma'am, 1 नहीं minute. बोल. हाँ, ऐसे बताओ ना कि 1 minute ma'am. Ma'am, electricity is going. I am Going where it is walking or what? Has gone or is going? Okay, Pranav left. Utkarsh. Utkarsh. Yes, ma'am, I'm present. Present नहीं बेटा, present. Sorry, ma'am. Now you have to start presenting whatever you have to say. Yes, ma'am, ma'am. Can I get a minute? Ma'am, just a minute, ma'am. Not a problem. Mummy, Devansh, mummy. Devansh Garg. Yes, ma'am, I'm ready. Okay, okay. बोलिए. So, ma'am, my first point is sorry. Good In afternoon, favor or one all against? present over here. Ma'am, I'm in against. So, good morning, one all present over here. Myself, Utkarsh Pandey, and as we all know, our topic about the multinational corporation. So, I'm going to explain I'm going to explain you some cons or disadvantages of it. So, my first point will be they might unfavorably dominate the market. So, ma'am, can I speak in Hindi apart? बोलना पड़ेगा उसको. 5 minutes they can give you.
ओके मैम। थोड़ा सा म्यूट करवाओ पीछे। ओके, इफ आई, यस मैम। हाँ जी। So my will be they might unfavorably dominate the market. So means remember just in first I will speak in English the point and then I will explain it. Remember that the market dominance of multinational corporation would make it hard for smaller local companies to thrive and succeed. For example, arguments state that the larger supermarket can sequoise local corner stores notable margin leading to lesser diversity. Means जैसे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो एक तो बल्क में माल खरीदेगा तो उनको उसमें सॉरी प्रॉफिट ज्यादा होगा, और जैसे कि उनको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा एज वो रॉ मटेरियल बल्क में लेंगे। एंड देन जैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कम रॉ मटेरियल लेंगे क्योंकि उनका प्रोडक्शन भी कम होगा। तो उसकी वजह से जो एमएनसी होंगी वो अपना प्रोडक्ट सस्ते में बेच पाएंगी क्योंकि उनको सामने से ही रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना प्रॉफिट जो होगा अगर मार्जिन कम कर सकते हैं बट उतना सस्ता चीपर रेट नहीं बेच सकते जितना कि एक एमएनसी वाले दे सकते हैं। एंड जैसे कि एक एग्जांपल है, हम अगर एक मॉल में जाएं, सुपर मार्केट में जाएं, तो वहां पर एक पी का पैकेट जो मटर बोलते हैं हम लोग, ग्रीन पी का पैकेट अपने को मिलेगा 75 रुपीज में। अगर हम वही चीज एक लोकल स्टोर से लें तो वो हमको 150 में पड़ेगा। एंड वहां पर होगा कि बाय वन गेट वन फ्री होगा। सो क्योंकि ये लोग माल बल्क में लेंगे सो ये लोग सामने बेचेंगे तो उसमें आप कुछ डिस्काउंट देंगे या फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर सकते हैं, बट एक जनरल स्टोर वाला ऐसा नहीं कर सकता है। तो जो ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होगा वो सस्ते के रेट चक्कर में स्मॉल जहाँ पे छोटी दुकान वाले होंगे वहां जाना प्रेफर नहीं करेगा, बड़े मॉल में जाना पसंद करेगा क्योंकि वहां पे वो हमको 150 के 2 मिलेंगे 1 केजी के, और यहाँ पे दुकान पे हमको 150 का खाली एक मिलेगा 1 केजी का। एंड माय सेकेंड पॉइंट विल बी, हाँ मैम। So my second point will be they might exploit the workforce. These corporations are not well known for treating people fairly and are instead known for ignoring rules and regulations, as well as turning a blind eye to injustice in the workplace. They are put into spotlight for outsourcing the lowest bidders and for stippling and quality. They are not known for having what smaller business have, the human touch. सो मैम एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि जैसे कि जो मशीनरी है जो एमएनसी है वो ज्यादा मतलब ह्यूमन जो वर्क होता है उसमें वो यूज करती है टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी यूज करेगी। सो उसकी वजह से लेबर वो लोग अपॉइंट कम करेंगे क्योंकि जहां 10 लेबर का काम एक मशीन कर सकती है तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके वो सब अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो इतनी जो एक्सपेंसिव मशीन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए वो जनरली लेबर करेंगे और लेबर का जो चार्जेस आएगा वो हमको हर मंथ पे करना पड़ेगा, पर जो मशीन का चार्ज आएगा वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि एमएनसी इस वजह से प्रॉफिट में जाए, उसका सेल बढ़े, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो स्मॉल स्केल शॉपकीपर हैं ये उनके लिए डिसएडवांटेजेस की बात है मैम, क्योंकि जो लेबर होगा उसको हर मंथ हमको उसको वेजेस देने पड़ेंगे। सो एक पॉइंट ये हो सकता है। एंड माय थर्ड पॉइंट विल बी, एक्सक्यूज मी, they can exploit local worker because of local condition. Is it truly ethical to pay someone in the United States $60,000 and someone in India $12,000 for exact same service? Multinational corporations tend to follow local rule when it comes to employee opportunity. That means what may be acceptable in one location is permitted to occur, even if it may not be acceptable in the country home location. According to MNDC International, numerous large brands such as Kellogg's use products that come through child labor practices. So एक पॉइंट हो सकता है
कि जो मेरे को चीज मैं बाहर से इंपोर्ट करवा रहा हूँ या जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कार है नेम रोल्स रॉयस, अगर वो यहाँ पर मुझे $60 की, एन एग्जांपल, वो यहाँ पर मुझे $60 की मिलेगी, अगर यहाँ एमएनसी नहीं है मैं बाहर से इंपोर्ट करवाऊंगा तो वो मुझे हो सकता है कि $17 की पड़े या फिर $18 की पड़े। तो एमएनसी होने का एक ये फायदा है कि हमको बाहर से जो चीजें आएंगी वो सस्ती मिलेंगी, और जो अपनी लोकेलिटी जो लोकल ब्रांड्स होंगे उसमें सेल कम जाएगी, क्योंकि हमको महंगे ब्रांड सस्ते में मिल रहे हैं। जो हम इंपोर्ट करवाना चाहते थे वो हमारे यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो उसके लिए जो हमारी लोकल ब्रांड्स होंगी वो सब चीजें लोग पसंद कर, मतलब खरीदना कम कर देंगे, जस्ट बिकॉज कि हमको जो चीज बाहर से इंपोर्ट करने में $100 की पड़ रही है, वो हमको हमारे एमएनसी जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही चीजें, खाली जो पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं वो अगर हम लेंगे तो हमको वो $1 या $2 में ही पड़ जाएगा। तो इसमें पब्लिक प्रॉफिट है। देन सेकंड चांस होता है कि ये लोग जो एमएनसी वाले होते हैं ये लोग चाइल्ड लेबर भी करवाते हैं। जैसे कि मैम 2016 या 17 में ही ऐसा कोई केस आया था कि जो केलॉग्स कंपनी है वो चाइल्ड लेबर करवाती है। सो मैम ये लोग चाइल्ड लेबर भी यूज करते हैं, और ये लोग जैसे कि मैम इतना बड़ा ये लोग लेबर लेते हैं और रॉ मटेरियल मंगाते हैं। मैम जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो ये लोग कभी क्या होता है फॉलो भी नहीं कर, मतलब कभी कभार फॉलो नहीं करते हैं या फिर तोड़ देते हैं, क्योंकि सच लॉज पॉपुलेशन में हम कौन ध्यान देगा कि 2-4 बंदे जो आ रहे हैं, जैसे कि फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग अपने गवर्नमेंट ने बनाया है, तो मैम वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाता है, और बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। एंड माई लास्ट पॉइंट विल बी they can bankrupt local businesses. Multinational corporations may provide new opportunities for some market, but they do so at expense of the current business already operating in that space. Being able to offer low price comes at high cost, even when brands have an stabilized name, retail price, effort, and disrupt the entire supply chain. Basic discovered the first hand when the Walmart began selling 1 gallon jar of pickles for just rupees $2.97. Their shares of business through Walmart climbed to 30%, but their profit reduced by more than 25% in January 2001. The company filed in bankrupt. हाँ मैम, last point, they might remove jobs from local economies. If you could save $48,000 by transferring a job from the US to India, would you do it? Now imagine these savings if you transfer 100 jobs at rate, or 1,000 jobs or 10,000 jobs. Multinational corporation use their size to create a race bottom when it comes to worker wages. They look for the best value possible for many workers in high value economies. That means their job either go away or they are forced to take a large pay cut kept before them. मैम जैसे कि जैसे जैसे एमएनसी बढ़ती जाएगी तो मैम जो लेबर हो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जिन्होंने लेबर रखे होंगे, या फिर जो लोग होते हैं जो शॉपकीपर होते हैं अपने दुकान में आदमी रखते हैं, मैम अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो अपना एम्प्लॉयमेंट रेट घटता जाएगा, और मैम आगे चल के क्या होगा, जो एमएनसी वाले होंगे वो इनको कम वेजेस पर रखेंगे। जैसे कि मेरा एक कोई ऑफिस है और वहां पर मेरा स्टाफ है, मैं उसको 6 घंटे बोलता हूँ काम करने को, बट और उनको वो सैलरी दे रहे हैं, बट मैम अगर मैं उनसे 12 आवर्स काम करवाऊँ और वही सेम सैलरी दूं तो मैम एक तो लेबर फोर्स ज्यादा लग जाएगा, और अगर उनके पास काम नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। तो मैम ये चारों तरफ से मतलब जो लेबर्स होंगे उनके लिए भी डिसएडवांटेज है। थैंक यू मैम। थैंक यू उत्कर्ष। थोड़ा मिक्स मैच हो गया उत्कर्ष शायद। सॉरी मैम, थोड़ा मिक्स एंड मैच हो गया। जैसे कि मैम हाँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब मिक्स हो गया। हाँ मैम कहीं से निकाले somewhere you went in favor, somewhere you went in against it. मैम वो खुद ही खुद प्रिपेयर किया था मैम, इसलिए no that is perfectly all right because we'll conclude in the end. Okay, Mohit Rajoria. Tisha, हाँ जी sorry Parth, you raised your hand, I'm so sorry. Yes Parth.
Yes, Utkarsh, be prepared for the answer. Ma'am, Utkarsh is saying that small traders become bankrupt because their products are not sold because of MNC. But people like to go and buy from MNC because because they provide quality and uh, because they provide quality food, and local traders doesn't provide that much type of quality foods. That's why people prefer to buy from MNC, not from local traders. मैम Yes, Utkarsh. मैम इसने खुद ही जवाब दे दिया आंसर का, मैं क्या दूं। इसने बोला मैम कि जो एमएनसी से लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको चीपर रेट्स में पड़ता है। तो मैम इससे तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका लॉस हो जा रहा है या उनके बिजनेसेस कम हो जा रहे हैं, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। वो लोग अनएम्प्लॉयड, अब वो उनकी है कि एमएनसी उनको प्रॉपर क्वालिटी फूड प्रोवाइड कर रहा है। कैसे है कैसे बोल रहे हैं कि फिर एमएनसी की वजह से छोटे ट्रेडर्स बैंकरप्ट हो रहे हैं? इट्स द भाई पीपल्स। अगर काम नहीं होगा तो मैं अनएम्प्लॉयड ही रह जाऊंगा ना। और एमएनसी जो मतलब चीपर रेट्स पे दे रही है सामान, वो अगर अगर कोई स्मॉल सेल बिजनेसमैन देगा या इंडस्ट्रियलिस्ट देगा तो वो अपना प्रॉफिट डूब जाएगा। तो मतलब नॉर्मल सी बात है, उसको लॉस हो जाएगा। तो हमको सबका बना के चलना है ना, ये नहीं खाली एमएनसी स्मॉल स्केल जो बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट में बंद हो जाएगा। अगर सबका लेके चलना है। लो प्राइस में चीजें प्रोवाइड करे तो क्वालिटी भी दे रहा है उस कभी चीज में। डेवलप ही नहीं हुआ। लोगों And को this is the क्वालिटी भी reason चाहिए होती है। and this is the reason, I hope I'm audible. यस मैम। यस मैम। And this is the reason with these policies of 1991, जब इन global companies को ज़्यादा welcome किया है हमने, उसके बाद the situation is better now. As far as we are talking about those companies who are not giving very good products, we have examples like अभी जो कंज्यूमर है इंडिया में, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेरी विजिलेंट थैंक्स टू सोशल मीडिया एज वेल। हमें पता है हमारे राइट्स कैसे हैं, वी कैन ऑलवेज कंपेयर द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन यूएस। वहाँ लॉ ऑफ टॉट्स बहुत ज़्यादा है कि इवन इफ यू हैव लिटिल प्रॉब्लम विद एनी ऑफ योर प्रोडक्ट, आई गिव यू एन एग्जांपल, इवन इफ यू गेट इवन अ स्मॉल पीस ऑफ छोटा सा पत्थर भी आ जाता है तुम्हारी ब्रेड में, you can even sue that company for the loss you have had, and you can get good compensation for that. Even if you wear any clothes in US and you get allergy by using those clothes, you can sue those companies, because वहाँ कंज्यूमर बहुत विजिलेंट है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हो चाहे वहाँ की लोकल कंपनीज हो, दे कैन नॉट स्पॉइल द कस्टमर देयर। बट इन इंडिया द सिचुएशन वाज अदरवाइज अर्लियर, बट अब सोशल मीडिया से कंज्यूमर विजिलेंट हो रहा है। बट देन ऑल्सो वी ऑलवेज फाइंड वेरी डिफिकल्ट, हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, वी बाय समथिंग, हमें कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे दिया, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक आटे का पैक लेकर आते हैं बाहर से, व्हेन वी कम बैक होम एंड वी सी इट इज एक्सपायर्ड, व्हाट डू वी डू? जनरली वी थ्रो इट इन द बिन और वी जस्ट डिस्कार्ड इट ऑफ। व्हाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट इनटू लिटिगेशन। ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनीज कैन ऑलवेज फूल अस, हम करना नहीं चाहते, वी डू नॉट वांट टू टेक केसेस अगेंस्ट देम, एंड जो लोग करते हैं देयर आर लॉट ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट देम। मैम ऐसा ही एक केस रेड बुल के खिलाफ फॉर्म हुआ था कि एक बंदे ने उसके ऊपर सू कर दिया था कि रेड बुल पीने के बाद उसको विंग्स नहीं आए, एज उसका तो वो है टाइटल, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो कुछ $5 लाख या $5,000 का उसके ऊपर उसने केस कर दिया था। So like this, there is lot of litigation. अब इंडिया में भी बहुत ज्यादा, मेट्रोज में थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा छोटी जगह तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि the lawyers are also be fooling the citizens now. और we have examples like Johnson. अगर उनके प्रोडक्ट्स देखो, although it was banned by the Supreme Court in 1999, क्योंकि वो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं है, मगर मार्केट में अभी भी है। मल्टीनेशनल कंपनीज भी यही सब कुछ कर रही हैं, उनको पता है कि कौन से कंट्री में दे एक्चुअली विल टेक अप फॉर डिस्कशन अगेन ऑन मंडे समवेयर on multinational companies. When these multinational companies, they want to target one of the developing nations, they make a very detailed study ki which is the appropriate country. अगर आप एग्जांपल लो फेसबुक की, चाइना में, डू यू हैव फेसबुक?
नो. डू यू हैव व्हाट्सएप इन चाइना? नो. क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है कि दे डू नॉट परमिट ऑल दीज multinational companies. Starbucks opened up in Australia, but they had to close up. क्योंकि वहाँ का कल्चर एडमिट ही नहीं कर रहा था जिस तरह की कॉफी स्टारबक्स ऑफर कर रहा था. तो दे मेक अ डिटेल्ड स्टडी. उनको पता है कहाँ गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन हमें इजी, कहाँ इजी है, कहाँ हमें चीप लेबर में, अफ्रीका में उनको बहुत चीप लेबर मिल जाएगी. So this is the reason companies are getting Africa a lot. वहाँ के रिसोर्सेज को वो इजीली वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज को इजीली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे वो लोग. So yes, if I have to say, yes, multinational companies are a threat to the developing nations. Like we were giving an example of obesity in the morning. प्रणब डडलानी, अगर आप बोलना चाहते हो, you can stop me in between. प्रणब डडलानी, तिशा गोम्बर, देवांश गर्ग, मोहित रजौरिया. सी मोहित, why do you join the class? I don't know. मैंने कभी नहीं सुना कि आपने yes ma'am भी बोला हो. He doesn't speak up. Mohit Rajoria, is he a old student? Is he a old student or a new student? In another class also. मगर कैसे पता चलेगा वो is he listening or not? Is he a shy kind of a person? How will I come to know? Like we were doing an example, I have repeatedly said now Devansh Kar, Tisha Gombar and Mohit Rajoria. If you want to speak, then I'll just take a pause now. Anyways, now if you have to do your research, you can always do your research. और कभी आपने इसको अपना publish भी कराना चाहते हो, it is very easy to get your paper published, but it has to be on a very DPS के अपने पेपर में आप इसको print करवा सकते हो, but it has to be an elaborate study. अगर आप demerits ढूंढ रहे हो, आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, statistics होने चाहिए in order to tell your point कि हाँ मेरे पास obesity इतने हैं, वहाँ के डॉक्टर्स के व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ लिखा हुआ है. इंडोनेशिया की एग्जांपल जो ये दे रहा था मोहित, आई थिंक ही गेव इट. दे Yes, वर ma'am. लिटरली दे वर मैन्युफैक्चरिंग द नाइकी कंपनी. उनके एम्प्लॉयज थी जहाँ पे उनको एक इन्फेक्टेड रूम्स में रखा गया था, जहाँ पे दे डिड नॉट हैव हेल्दी एटमॉस्फेयर. वहीं पे सो रहे हैं, वहीं दैट इज अ स्मॉल रूम जहाँ खा पी रहे हैं, एंड द सैनिटेशन ड्रेनेज सिस्टम वहीं से निकल रहा है. एंड दो सेम शूज आर सोल्ड फॉर ऑलमोस्ट कितने $1,000 में वो बिकते हैं शूज, एंड दे आर नॉट इवन पेड एडिक्वेट. मैम उनकी सैलरी सिर्फ $39 थी महीने की. Yes, and those shoes, if you say one particular piece of shoes, they are sold at a very high price मैम all more over than the world. $100 each. Yes, and they're hardly paid anything. But yes, we have big companies. We have जैसे Google अपने Silicon Valley में, how they are treating their employees in Google in US. In the similar manner, they are treating their employees in Delhi also. They have weekly parties जहाँ पे उनको पूरी refreshment दी जाती है, and so that they can relax themselves, so that they are more active and energetic from the next week. Monday to Friday they work. They have 5 days a week. Netflix is providing good remuneration to the employees here. और employment जैसे कोका कोला एग्जाम्पल है हमारे पास, जहाँ लीगोज एग्जाम्पल है. वी हैव जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. Like this, you should research on. I don't know whether you have got appropriate articles or not when you research the name companies and what type of products. अगर आप कह रहे हो कि हाँ ये कंपनी कैसे स्पॉइल कर रही है, कितने टन्स ऑफ मटेरियल दे आर डिस्चार्जिंग इन वाटर, तब आप ये बताते हो कि गवर्नमेंट. आपके पास डेटा ही है शायद, आप सिर्फ उसको अपना व्यू पॉइंट बता रहे हो. तो आप एजेंसी का निकाल के उस
नमन नमन कर दे। कर दो टाइम हो गया वैसे। मैम अभी तक ज्वाइन कर लेती हो? नहीं। हाँ, क्योंकि टाइम खत्म हो ही गया है लगभग लगभग। चलो ठीक है, बाय सब लोग।